Alright class, we are back. Send me a message if you are in the class and you can hear me properly. You might have been away. Okay, Furqan Nazir is in class. What about others? Okay, this was a short video that Furqan sent to me. I forwarded it to all of you. If you've seen it, it's pretty interesting to see that kind of technology being evolved in our world using artificial intelligence. It's okay if you can watch it later. It's not obviously related to our course, but it's an interesting technology because it is developed on the basis of artificial intelligence. But let's continue. It seems very flashy when we see things working like that in the world of artificial intelligence, and most of the people expect those things to be in their courses of artificial intelligence and related courses. But in real life, if you want to actually get onto the bottom of what actually artificial intelligence is, you will see that it's not very interesting, not as interesting as these kind of videos might show to you, as movies show to you, as multiple magazines show to you. It's not that flashy, but it is pretty interesting if you can see what beauty lies beneath the mathematics of it. Mathematics, as you know, it is the very fundamental aspect of theoretical computer science, algorithms, theory of automata, artificial intelligence, networking, and whatnot. And obviously, we will work on mathematics as well in this course. But the essential part of mathematics that we are going to work on in this artificial intelligence course, especially the labs of artificial intelligence, that part is known as logic. Logic is what? Logic is, we say that logic is like the way of doing something. When we use the word logic in our daily life, like किस लॉजिक से आप ये बात कर रहे हो, किस लॉजिक से आपने ये बात समझी है, ये काम आपने किस लॉजिक से किया है. So when we use that word logic, we essentially mean the algorithm. किस तरीके से आपने ये काम किया है, what are the steps that you have taken in order to achieve this thing. So let's talk about the initial phases of our lab of artificial intelligence. So we are switching to the lab of artificial intelligence for now, and we will continue from where we left off our theoretical debate in the next class as well, which might happen today or maybe tomorrow. I will communicate to you on WhatsApp. So in order to understand this logic thing properly, I would need you to answer things to me with chat in a very interactive manner. Let's say I say that Ali reads newspaper. You all understand this sentence. Ali reads newspaper. Now this statement, this sentence can be one of two things. It can be either true or false. This is logic. Logic is essentially just the study of truths and falses. It's the study of truth. क्या चीज़ सच है, क्या चीज़ झूठ है. So can you tell me, Ali reads newspaper, is it true or false? Tell me, Ali reads newspaper, is it true or is it false?
It may be true or it may be false. Malik Bilal is saying. What about others? Furqan Nazir is saying it's true or either it is a false. Depends on the situation of what information you got. That I think you mean that we would need to understand who is Ali, what is a newspaper, what does it mean by reading, in order to understand that what is the value of this sentence, is it true or false. Let's say, for example, let's create a scenario where I say that this sentence is true. ये sentence true है. For example, मैं ये कहता हूँ it is a truth statement. It is a true statement. Let me write T at the end of this. Let me write another sentence. Ahmad reads newspaper. Let's say this is true as well. Let's say if I write a sentence that Ali and Ahmad read newspaper. अब मुझे बताएं कि ये जो सेंटेंस मैंने आखिरी लिखा है ये ट्रू या फॉल्स है. इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स? Is it true or is it false? This sentence. Is it true or is it false? Why is it true? Malik Bilal is saying it's true. क्या बता सकते हैं कि true क्यों है? Because both are reading newspaper, Malik Bilal is saying. जब मैंने पहला जुमला लिखा कि अली रीड्स न्यूज़पेपर, यू वर बोथ ऑलमोस्ट रिलेक्टेंट. जो क्लास में स्टूडेंट्स हैं, दे वर रिलेक्टेंट टू से दिस इज़ ट्रू. दे वर सेइंग दैट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. दे वर सेइंग दैट अली रीड्स न्यूज़पेपर. ट्रू या फॉल्स बताने के लिए हमें पता लगाना होगा न्यूज़पेपर है भी या नहीं, अली वाकई पढ़ भी रहा है या नहीं पढ़ रहा, एक्चुअल सिचुएशन है क्या, तो हमें वो पता लगेगा तो हम कहेंगे कि इट इज़ ट्रू और फॉल्स. But this sentence that I have written, you are saying that it is true. Why is it true? Because you know that Ali and Ahmad are both reading newspapers. How do you know that? Because there are two statements in this situation जो कि हम लिख चुके हैं पहले और हम मानते हैं कि वो ट्रू. और वो दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं कि अली रीड्स न्यूज़पेपर एंड अहमद रीड्स न्यूज़पेपर. So we are just saying that according to, now this is the catchy word that we will be using on and on in our lectures, in our labs, that based on the previous information, based on the previous experience, based on the previous information of this scenario, we can conclude that Ali and Ahmad are reading newspaper. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, नाउ व्हाट विल दिस स्टेटमेंट बी? Look at the scenario and tell me what would this statement be. T/F, what would this be? True or false? Right, so it will be false. And why would it be false? Because Ali and Ahmad read newspaper. दोनों because read नहीं कर रहे हैं newspaper. This is why we can't say that Ali and Ahmad are reading read newspaper. ठीक है. So in this scenario, again we are using the previous information, we are using the previous knowledge in order to determine what is the situation of is the truth value of this statement. This is what logic is, that based on the previous information
लेट मी राइट इट हियर, बेस्ड ऑन द प्रीवियस इंफॉर्मेशन, या जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं प्रेमिस, प्रीवियस इंफॉर्मेशन कह लें या प्रेमिस कह लें, सेम थिंग. Based on the previous information, we find the conclusion. दो चीज़ें हैं, प्रीवियस इन्फॉर्मेशन क्या है और कंक्लूजन क्या निकलता है उससे. फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस इन्फॉर्मेशन में आपको ये कहता हूँ कि प्रीवियस इन्फॉर्मेशन कह लें या जस्ट इन्फॉर्मेशन कह लें, दैट्स अप टू यू, बिकॉज एन इन्फॉर्मेशन कैन बी जस्ट फेड टू यू, इट माइट नॉट हैव हैपेंड इन द पास्ट, बट एनीवेज द प्रेमिस जिस तरह से आमतौर पर ये समझाया जाता है कि बारिश हो रही है तो इसका मतलब है कि आसमान पे बादल हैं, राइट. तो अगर मैं ये कहता हूँ कि बारिश हो रही है और आपसे मैं पूछूं कि क्या आप बता सकते हैं कि आसमान पे बादल हैं या नहीं, तो यू विल से दैट यस आई कैन टेल यू बिकॉज दिस इज रेनिंग, आई कैन कंक्लूड दैट देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, राइट. इसी तरह से अगर मैं आपको कहता हूँ कि लेट्स से व्हाट इज टुडे, टुडे इज वेडनेसडे आई थिंक. So if I say that if it is Wednesday there will be artificial intelligence class, then what am I actually saying that अगर मैं सिर्फ आपको ये बता दूँ कि आज Wednesday है, then you can conclude. अगर मैं आपको premise बता दूँ कि आज Wednesday है, then you can conclude that there will be artificial intelligence class today. If it is not Wednesday, there can be not artificial AI class. So we conclude, we base our conclusion, we base our results on the basis of previous information. So what is the previous information, and according to that we will base that what is a so let's write some sentences in our logic. Let's say मैं इसी चीज़ को कंटिन्यू करता हूँ. अली रीड्स न्यूज़पेपर. नाउ लेट्स ट्राई टू, अब मैं इसको एक सिंटेक्स के तौर पर लिख रहा हूँ. इसमें दो चीज़ें हैं एक्चुअली. एक चीज़ ये है जो मैंने सेलेक्ट की है न्यूज़पेपर, और एक चीज़ है अली, और एक चीज़ है रीड्स. इन तीनों चीज़ों में एक्चुअल काम जो है वो रीडिंग का है. रीडिंग इज द एक्चुअल कीवर्ड कह लें आप जिसको, रीड्स. अब इसमें क्या है, अगर मैं लिख देता हूँ अली न्यूज़पेपर, एक जुमला ये है. एक जुमला और मैं लिखता हूँ, और मैं लिख देता हूँ रीड्स अहमद न्यूज़पेपर. इस जुमले को मैं पढ़ूंगा, जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं इस जुमले को पढ़ूंगा अली रीड्स न्यूज़पेपर, और नीचे वाले जुमले को मैं पढ़ूंगा अहमद रीड्स न्यूज़पेपर. नाउ एक और जुमला मैं लिख रहा हूँ और आप मुझे बताएंगे कि मैं उसको कैसे पढ़ूंगा. टेल मी, मैं इस जुमले को कैसे पढ़ूंगा. सेम एज इन व्हाट, लिख के भेजें मेरी फिलहाल पूरा जुमला आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि व्हाट वुड इट रीड बाय दिस. फॉर एग्जांपल मैं इसको पढ़ूंगा अली रीड्स न्यूज़पेपर, इसको मैं पढ़ूंगा अहमद रीड्स न्यूज़पेपर, इसको मैं पढ़ूंगा क्या, मलिक बिलाल इज सेइंग अली रीड न्यूज़पेपर, या फुरकान नज़ीर इज सेइंग न्यूज़पेपर रीड्स बाय अली. ओके. अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपनी सिचुएशन को चेंज करना होगा, अपने एस्पेक्ट को चेंज करना होगा. वो ये कि ये जिस सिचुएशन में, जिस तरह मैंने ये जुमले लिखे हैं, इन जुमलों को कहा जाता है द सेंटेंसेस ऑफ प्रेडिकेट लॉजिक. जो नीचे मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं, जो ऊपर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ये तो सिंपल इंग्लिश का जुमला है, अली रीड्स न्यूज़पेपर, ये तो सिंपल इंग्लिश का जुमला है. ये जो नीचे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, दीज आर द सेंटेंसेस ऑफ प्रेडिकेट लॉजिक. प्रेडिकेट लॉजिक क्या कहती है? प्रेडिकेट लॉजिक ये कहती है कि अगर आपके पास एक जुमला है तो आप उसको तोड़ दो इस तरीके से कि उसका जो वर्ब है, जिस तरह यहाँ पर रीड्स है वर्ब, उसको आप पहले लिखो जिसको आप कहोगे प्रेडिकेट, रीड्स इज़ द प्रेडिकेट, और उसके बाद जो जुमले के चीज़ें बचती हैं उसको आप आगे कॉमा देकर लिखते रहो. ठीक है. आपने इंग्लिश में भी इसी तरह पढ़ा होगा. अगर मैं आपको कहता हूँ कि अली इज़ अ गुड स्टूडेंट,
ये एक जुमला है। आपने इंग्लिश में एक चीज़ पढ़ी होगी, लेट मी रिमाइंड यू अबाउट, जब आप इंग्लिश में टेंसेस पढ़ते थे, एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ते थे, तब आपने ये एक चीज़ पढ़ी होगी कि एक सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं। एक सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं। कौन कौन से हिस्से होते हैं, वो बता सकता है कोई? डज एनीवन रिमेंबर? एक सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं। खैर वैसे तो बहुत सारे हिस्से हो सकते हैं कि उसमें आर्टिकल भी होता है, उसमें नाउन भी होता है, उसमें वर्ब भी होता है, उसमें फला फला चीज़ें होती हैं। बट इफ़ आई वांट टू डिवाइड अ सेंटेंस इनटू टू थिंग्स, व्हाट आर दोज टू थिंग्स? डज एनीवन रिमेंबर? ओके, नो वन। सो इस जुमले को, किसी भी जुमले को आप दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। एक हिस्से को हम कहते हैं सब्जेक्ट और एक हिस्से को हम कहते हैं प्रेडिकेट। इन दो चीज़ों से मिलके बनता है कोई भी जुमला। ये जो ऊपर जुमला लिखा हुआ है, इसमें ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट। दिस इज द सब्जेक्ट एंड दिस इज अ प्रेडिकेट। सब्जेक्ट यानी कि जो सब्जेक्ट है, जिसको आप कहते हो सब्जेक्ट, द नाउन, द पर्सन दैट इज वर्किंग ऑन वॉट एवर द सेंटेंस इज, अली इज द सब्जेक्ट and the rest of the situation and the rest of the part of sentence is known as predicate. This is exactly what we are doing here. Ali reads newspaper. What we are doing, we are differentiating the predicate कि actually काम क्या है। reads को हम अलग करते हैं और इसके बाद अली और न्यूज़पेपर को एज अ सब्जेक्ट ले लेते हैं। ये दोनों सब्जेक्ट हो जाते हैं हमारे लिए, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट बाय दिस कि रीड्स अली न्यूज़पेपर का मतलब क्या होगा। इसका मतलब ये होगा कि अली रीड्स न्यूज़पेपर। अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा जी अहमद रीड्स न्यूज़पेपर। अब इसका मतलब क्या होगा? नाउ रिमेंबर दिस। अब जो मैं जुमला लिख रहा हूँ उसको ज़रा गौर से देखना कि मैं क्या लिख रहा हूँ, और फिर आपको अगर समझ में आ जाती है ये बात, तो दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू कि मैं एक्चुअली क्या बात समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। इस जुमले को मैंने पढ़ा अली रीड्स न्यूज़पेपर, इस जुमले को मैंने पढ़ा अहमद रीड्स न्यूज़पेपर। अब इस जुमले को मैं पढ़ूँगा लेट्स टेक अ मोमेंट एंड टेल मी what did you understand by this? So what I'm trying to say here is that when I write something in predicate logic, the placement of subjects matter. प्लेसमेंट मैटर करती है कि आपने कहाँ पर लिखा है जुमला, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से मैंने यहाँ पर लिखा है अली as a first subject, so that means that Ali is reading newspaper, Ahmad is reading newspaper, newspaper is reading Ali. Because we are going to apply this in a computer simulated environment, because we are going to apply this in a programming language, you should know, because you are the students of seventh semester, you should know that programs do not know the actual meaning of the word or the sentence. They only know कि उसको कहाँ लिखा गया है। जैसा कि आपने सी में अगर देखा हो, आपने सी में एक वर्ड देखा होगा, लेट्स से प्रिंट एफ। सी में आप यूज़ करते हैं प्रिंट एफ, या सी आउट आप यूज़ करते हैं सी प्लस प्लस में। तो जो सी आउट आपने लिखा, क्या आपके कंप्यूटर को ये पता है कि उस सी का मतलब कंसोल है और आउट का मतलब आउटपुट है? ये तो आपको पता है, या मे बी आपको पता लगाओ, बट सी आउट का मतलब उसे नहीं पता कि क्या है। उसको सिर्फ ये पता है कि जब सी आउट लिखा हुआ हो तो उसका मतलब है कि उसके आगे जो चीज़ लिखी हुई है उसको प्रिंट करना है स्क्रीन पे। उसे ये नहीं पता सी आउट का मतलब क्या है।
आपने खुद भी देखा होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, डाटा स्ट्रक्चर्स में आपने अपने फंक्शंस बनाए होंगे, डिस्प्ले का फंक्शन बना दिया, भाई डिस्प्ले के फंक्शन में जो चीज़ लिखी होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी, बट उसके अंदर की प्रोग्रामिंग आपने खुद लिखी है, आपने खुद उसको प्रिंट करवाया सी आउट के थ्रू या वट कोई भी सिचुएशन आपने यूज़ की हो। माई पॉइंट इज़ कि प्रोग्राम को, क्योंकि हम ये वाली सारी चीज़ें भी प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करने लगेंगे, सो प्रोग्राम डज़ नॉट नो कि रीड्स का मतलब क्या है, प्रोग्राम डज़ नॉट नो कि अली का मतलब क्या है, प्रोग्राम डज़ नॉट नो कि न्यूज़पेपर का मतलब क्या है, लॉजिक डज़ नॉट नो कि न्यूज़पेपर का मतलब क्या है, अली का मतलब क्या है, रीड्स का मतलब क्या है। इट ओनली नोज दैट रीड्स इज़ द वर्क that is being done by the first subject on to the second subject। इसको ये पता है कि reads जो है वो एक काम है जो कि ये कर रहा है सेकंड चीज़ पे। अब इस सेंटेंस को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट लाइक reads Ali book। That is a correct sentence as well। According to the predicate logic, I will consider this sentence as what? As Ali reads book। Similarly, I can write another sentence like say Ahmad, क्या मतलब हुआ इस जुमले का? Ahmad reads magazine, right? So as you can see that we can write multiple sentences by using the same predicate only by changing the subjects। जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं इसको हम कहेंगे सब्जेक्ट्स। इसको हम चेंज कर सकते हैं, प्रेडिकेट को हम चेंज नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन अगर मैं एक और जुमला लिखता हूँ, ये मैंने एक जुमला लिखा, इसका मतलब क्या होगा? कैन यू टेल मी? Can you tell me what to write after this double slash according to your previous knowledge? क्या आपके अंदर इतनी इंटेलिजेंस है कि आपको पिछली जो 6-7 मैंने चीज़ें बताई उसके मुताबिक आप ये बता सकें कि इसका मतलब क्या है? डबल स्लैशेस के बाद क्या लिखूं? ओके, गुड इनपुट। मलिक बिलाल इज सेइंग अली इनरोल्ड एआई, इसका मतलब ये होगा। And yes, according to your previous knowledge, you are right, Ali enrolled AI। For example, if I say that it means that Ali is enrolled in AI। अब मैं एक और 2 जुमले लिखता हूँ, चलें पहले एक लिख देता हूँ। पहले मुझे ये बता दें इसका मतलब क्या है। Take participation in the conversation please, other students as well। all right, yeah, so Ahmad enrolled in math, इसका मतलब ये होगा। Malik Bilal is saying इसका मतलब होगा Ahmad enrolled in math। आपसे ये बार बार काम करवा के मैं आपके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। अभी अब आपने ये समझनी है चीज़ कि एक्चुअली ये काम क्या हो रहा है, रादर देन कि मैं आपको डेफिनेशन समझाऊँ। एक और चीज़, इसका मतलब बताएं क्या होगा। All right, very good। So the answer to this situation, like Malik Bilal is saying, only one student who is being very interactive in class rather than other students, is that Ali is enrolled in newspaper। Now there is a very interesting thing about this sentence। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट्स अगर आप गौर करें तो वही हैं जो कि फर्स्ट सेंटेंस में है, रीड्स अली न्यूज़पेपर। बट बगैर मेरे बताए आपने ये बात समझ ली, बिकॉज आई हैव बिन डूइंग दिस एक्सरसाइज विद यू ऑन एंड ऑन। आपने ये बात समझ ली कि व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज़ द प्रेडिकेट, सब्जेक्ट्स इम्पोर्टेंट नहीं है। सब्जेक्ट्स इम्पोर्टेंट नहीं है, यू कैन रिप्लेस द सब्जेक्ट हाउ एवर यू वॉन्ट, द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज द प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या है और उसके जुमले को आप कैसे बोल रहे हैं,
दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। यहाँ पर चाहे आप जो लिख दें उसको मैं इसी तरह का सेंटेंस में बोलूँगा विद यूजिंग द प्रेडिकेट। अगर मैं यहाँ पर लेट से मैं एक अनकन्वेंशनल चीज़ भी लिख देता हूँ ना, लेट से मैं लिखता हूँ एनरोल्ड और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ से पाकिस्तान और इंडिया लेट से, तो इस जुमले को भी मैं बगैर मतलब समझे, बिकॉज आई एम अ कंप्यूटर, राइट, बिकॉज I'm looking at the previous knowledge and I'm deciding what to do, I will say this sentence that the first thing, whatever that is enrolled in the second thing. Similarly, अगर मैं ये कहता हूँ कि यही सारी चीज़ reads के साथ में लिख देता हूँ, this is going to be important later. अगर मैं reads के साथ लिख देता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा? Again, the first thing reads the second thing. ये बात अगर आपने समझ ली ना आज, it would be very helpful for you for in all the upcoming labs. What's the important thing? Important thing is the predicate. Brackets के अंदर जो लिखा हुआ है that is not as important. The most important thing is the thing that is starting the sentence, the predicate. वो चीज़ important है और उस sentence को हमने समझना है कि उस प्रेडिकेट को हम कैसे पढ़ेंगे। अगेन वन मोर थिंग, रीड्स अली, इसका क्या मतलब होगा? इसको कैसे पढ़ेंगे? कैन यू टेल मी? इसको कैसे पढ़ूंगा मैं? ओके, यू आर सेइंग दैट वी विल रीड इट लाइक अली रीड्स, दैट्स इट. So yes, I think it's right. And why is it right? Let me tell you this. Reads एक ऐसी चीज़ थी अब से पहले, इस सेंटेंस से पहले जो मैंने सेलेक्ट किया, इससे पहले रीड्स एक ऐसी चीज़ थी जिसके बाद हमने हमेशा दो सब्जेक्ट्स लिखे और हमने ये क्या कह रहे हैं उसको, नॉर्म बना लिया कि फर्स्ट वन फिर रीड्स एंड देन सेकंड वन हम लिखेंगे। लेकिन अभी तक हमने रीड्स कोई ऐसा डिफाइन नहीं किया जिसके अंदर सिर्फ एक सब्जेक्ट हो, लेकिन हमने प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करते हुए ये कह दिया कि ठीक है हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि अली रीड्स, दैट्स इट, सेकंड कुछ नहीं है तो हम नहीं कह सकते। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आपने समझनी है। अव्वल तो आपने ऊपर वाली सारी बातें जो मैंने आपको समझाई हैं, होपफुली दैट आर वेरी अंडरस्टैंडेबल टू यू। द अदर मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि इट्स नॉट अबाउट, कंप्यूटर को ये नहीं पता कि न्यूज़पेपर क्या है, अली क्या है, रीड्स क्या है, लाइक आई सेड ऑलरेडी। उसको सिर्फ ये पता है कि आपने एक चीज़ लिखी, उसके बाद एक दूसरी चीज़ लिखी। अब यहाँ पर आप इसको अली रीड्स पढ़ें, रीड्स अली पढ़ें, मेरी बला से कुछ भी पढ़ें, आई डोंट केयर। What I care about is that कि अगर आपने इस जगह पर इसको पढ़ा है रीड्स, अली रीड्स, तो फिर इस जगह पर भी आपको पढ़ना होगा क्या? अहमद रीड्स। बस ये एक रूल है जो कि मैं आपके ऊपर नाफिज कर रहा हूँ। अगर आप इसको लेट्स से कि मैं ये कहता हूँ अली अहमद न्यूज़पेपर, अगर इस सेंटेंस को आप पढ़ते हैं, अभी तक 3 वाला भी नहीं आया लेकिन मैंने 3 बनाया लेट से, और मैं लेट से इसको मैं ऐसे पढ़ता हूँ अली एंड अहमद रीड्स न्यूज़पेपर। अगर मैं इस जुमले को ऐसे पढ़ रहा हूँ तो फिर कहीं भी अगर रीड्स के साथ मैं 3 चीज़ें लिखूँ तो उसका मतलब हमेशा यही होना चाहिए कि ए एंड बी रीड्स सी। आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि ए रीड्स बी एंड सी। आप कभी भी ये नहीं कहेंगे सी रीड्स ए एंड बी। आप कभी भी ये नहीं कहेंगे बी रीड्स ए एंड सी। अगर आपने फर्स्ट टाइम इसको ऐसा कह दिया कि अली एंड अहमद रीड्स न्यूज़पेपर, तो फिर इसको आप हमेशा ए एंड बी रीड्स न्यूज़पेपर ही लिखेंगे, नॉट फॉर द कंप्यूटर्स और प्रोग्रामिंग सेक, फॉर योर ओन सेक। अगर आपने इसको अलग पढ़ा और नीचे वाले को अलग पढ़ा तो फिर आगे जाकर अपने प्रोग्राम में आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, आपका प्रोग्राम बिल्कुल काम नहीं कर रहा हो। ठीक है, सो इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, नेक्स्ट लैब के अंदर भी। अगर आज टाइम होता है हमारे पास तो मे बी इन द इवनिंग सम टाइम
around 7 p.m. or maybe 8 p.m. We can schedule a class of AI as well. Online class है तो we can take it at any time of the convenience hopefully. So if that's the case मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा. प्लीज़ भी इन्फॉर्म, मैं बस क्लास फिनिश कर रहा हूँ अभी. प्लीज़ भी इन्फॉर्म कि MS Teams के ऊपर इनरोल आपने होना है लाजमी. MS Teams के ऊपर एज सून एज पॉसिबल इनरोल हो जाएं. आपकी आईडीज़ वगैरह नहीं चल रही हैं तो IT को ईमेल करें, ठीक है. एग्ज़ाम वालों को, एडमिशन वालों को, जिसको भी आपने ईमेल करनी है HOD को ईमेल करें कि MS Teams आपको ओपन करवा दें. MS Teams ओपन हो जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट क्लासेस MS Teams के ऊपर लेंगे. होपफुली अगर आज ही हो जाता है तो आज की क्लास भी अगर हम कोई लेते हैं तो वो MS Teams के ऊपर ही लेंगे. अदरवाइज़ द क्लास विल बी ऑन Zoom, जो कि हम अभी रीड कर रहे हैं, ठीक है. थैंक यू वेरी मच. आई थिंक क्लास को मैं अभी यहाँ पर फिनिश करता हूँ. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन क्यूरी, वी आर इन द व्हाट्सएप ग्रुप, आप उस पर भेज सकते हैं. और कोई अगर इन्फॉर्मेशन हो तो मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर कर लूँगा. थैंक यू वेरी मच. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.